Now the topic is power of I का power. We have seen that I equal to under root of minus 1. I equal to under root of minus 1. दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं. Then we get I square equal to under root of minus 1 का स्क्वायर minus 1. रूट निकल जाएगा. अंडर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 रूट रिमूव. यानी आई स्क्वायर की वैल्यू कितने हो गए माइनस 1. आई क्यूब मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई. आई क्यूब कितना होता है आई स्क्वायर इंटू आई. व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर. आई स्क्वायर मीन्स माइनस 1 इंटू आई दैट इज माइनस आई. यानी आई क्यूब की वैल्यू हो गई माइनस आई. आई रेस टू 4. I raised to 4 means I square into I square. I raised to 4 है I square into I square. I square means minus 1 into minus 1 that is equal to 1. यानी I raised to 4 it is equal to 1. यानी I का कोई भी पावर रहा तो 4 में कन्वर्ट करेंगे, 4 में एक्सप्रेस करेंगे. Because I raised to 4 means 1. जैसा I raised to 35 है तो 35 क्या करना है. 35 को 4 से डिवाइड करेंगे. डिवाइड 35 बाय 4. 4 8 32. 3 हो गया रिमाइंडर. ये हो गया कोशंट. यदि 35 को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ 4 तो व्हाट वी राइट 4 into 8 32 plus remainder 3. 35 can be written as divisor, can be written as divisor into quotient plus remainder, and the 35 equal to 4 into 8 plus 3 that is 32. 32 plus 3 35. So I raised to n निकालना है तो n शुड बी ग्रेटर देन 4 से ग्रेटर ना चाहिए तो 4 से डिवाइड करेंगे. यदि एक ग्रेटर देन 4 है तो डिवाइड n बाय 4. सपोज द क्वोशंट इज m. क्वोशंट यहाँ पे जैसा आ गया 8 तो क्वोशंट इज m. रिमाइंडर इज r इज अ रिमाइंडर, m इज अ क्वोशंट. देन n कैन बी रिटन एज 4 into m plus remainder. 35 can be written as 4 into 8 plus remainder 3. n can be written as 4 into m plus remainder n equal to 4m plus r. And I raised to n can be written as I raised to 4m plus r. I raised to 4m is I raised to 4m into I raised to r. इंडेक्स का रूल है. आई रेस टू 4m प्लस आर मीन्स आई रेस टू 4m इंटू आई रेस टू आर. ये होगा आई रेस टू 4 होल रेस टू m. आई रेस टू 4m इंटू आई रेस टू आर. आई रेस टू 4 मीन्स 1 और 1 रेस टू m दैट इज 1 रेस टू m इंटू आई रेस टू आर. दिस इज आई रेस टू आर. यानी आई रेस टू n इट इज इक्वल टू आई रेस टू आर. जब MCQ सॉल्व करते अपन तो डायरेक्ट n को डिवाइड करेंगे 4 से. डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आता है वो डायरेक्ट लिख लेना है. जैसा आई रेस टू 35 इट इज इक्वल टू आई रेस टू 34 4 इंटू 8 आई रेस टू 4 होल रेस टू 8 यानी हो गया 32 इंटू आई रेस टू रिमाइंडर कितना है 3. ये वैल्यू हो गई 1 आई रेस टू 3. यानी डायरेक्ट जो रिमाइंडर है रिमाइंडर अपन यहाँ पे MCQ के वक्त ले सकते हैं. I raised to 35 means I raised to 3 because remainder is 3. When 35 is divided by 4, quotient is 8, remainder is 3. We require this remainder. And I raised to 35 means I raised to 3. I raised to n, it is equal to I raised to r. I raised to n equal to I raised to r. Consider I raised to n where n is positive integer and n is greater than 4. Now we divide n by 4 and let the quotient be m and remainder often be r. Remainder है r. यानी n को लिख सकते अपन 4m plus r. अभी बता देना n को डिवाइड करना है 4 से.
रिमाइंडर है m, क्वोशंट है m and remainder is r. So n can be written as 4 into m, a multiplication plus remainder 4m plus r. I raised to n can be written as I raised to 4m plus r. I raised to 4m plus r means I raised to 4m into I raised to r. I raised to 4m into I raised to r. I raised to 4m means I raised to 4 whole raised to m into I raised to r. I raised to 4 1 है तो 1 raised to m ये हो गया 1 into I raised to r. So I raised to n it is equal to I raised to r. इसमें एग्जांपल है जैसा I raised to 82. 82 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 are 8, 4 0 are 0, that means 2. अब ये हो गया 80 प्लस 2 दैट इज 82. अब अपन लिखेंगे I raised to 82 को लिखेंगे I raised to 4, I raised to 4 raised to क्वोशंट कितना है 20 इंटू I raised to रिमाइंडर है 2, रिमाइंडर है 2. I raised to 4 raised to m यानी क्वोशंट. r means रिमाइंडर. यानी I raised to 4 means 1 raised to 20 यानी 1 into I स्क्वायर की वैल्यू -1 है यानी I raised to 82 इक्वल टू -1. In general I raised to 4n it is equal to 1. I raised to 4m it is equal to 1. I raised to 4n plus 1, I raised to 4n plus 1 and I raised to 4n into I raised to 1. I raised to 1 means I. ये हो गया 1 into I means I. ये वैल्यू हो गई I. I raised to 4n plus 2. I raised to 4n into I raised to 2. I raised to 4n है 1. I स्क्वायर की वैल्यू -1. 1 into -1 -1. -1. Then I raised to 4n plus 3. होगा I raised to 4n into I raised to 3. I raised to 4n means 1. I raised to 3 यानी I square into I -1 into I that is -I. तो ये फॉर्मूले चारों भी लर्न कर लेना है. I raised to 4n means 1. I raised to 4n plus 1 means I. I raised to 4n plus 2 means -1. I raised to 4n plus 3 means -I. I का कोई भी इंटीजर रहता है, कोई भी इंटीजर है, एन इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, वैल्यू विल बी आइदर 1 और -1 और I और -I. n belongs to capital N, positive integer. Division of complex number. Let a equal to a plus ib और second c plus id. ये दो complex numbers है. These are the two complex numbers. c plus id non-zero है, zero complex number नहीं है. The division is defined as a plus ib upon c plus id निकालना है. तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर है c plus id, इसका कॉन्जुगेट है c माइनस id. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को c माइनस id से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय c माइनस id. अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी माइनस i इंटू ए डी, बाद में प्लस i इंटू बी सी, बाद में फिर माइनस आई स्क्वायर बी डी. डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आई डी होल स्क्वायर. ये पहली टर्म a इंटू सी, सेकेंड टर्म माइनस आई इंटू ए डी इंटू आई प्लस आई इंटू बी सी इंटू आई माइनस आई स्क्वायर इंटू बी डी. डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर आई इंटू डी होल स्क्वायर. यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू रखना है -1. आई स्क्वायर मीन्स -1. यहाँ पे आई स्क्वायर डी स्क्वायर सेपरेट किया. पहले टर्म ए सी
माइनस ए डी इंटू आई प्लस सी बी इंटू आई प्लस बी डी अपॉन आई सी स्क्वायर माइनस माइनस वन इंटू डी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, ये ए सी प्लस बी डी एक ब्रैकेट में प्लस आई कॉमन लेंगे दोनों में से, ब्रैकेट में बी सी बी मीन्स बी सी माइनस ए डी, डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इन्हें कॉन्जुगेट डिवीजन यदि निकालना है, डिवीजन को सिंप्लीफाई करना रहा तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट सिंप्लीफाई कर लो, वी गेट द आंसर इन द फॉर्म ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर सेपरेट किए तो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई इंटू बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एग्जाम्पल है Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आई, Z2 इक्वल टू 1 प्लस 2 आई, निकालना है Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2 मीन्स 2 प्लस 3 आई अपॉन 1 प्लस 2 आई, डिनोमिनेटर है 1 प्लस 2 आई, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 1 माइनस 2 आई, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस 2 आई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, ये आंसर है। न्यूमरेटर का प्रोडक्ट 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 2 इंटू 2 आई माइनस 4 आई, बाद में प्लस 3 आई इंटू 1 प्लस 3 आई प्लस 3 आई इंटू माइनस 2 आई माइनस 6 आई स्क्वायर, डिनोमिनेटर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस आई का स्क्वायर यानी 4 आई स्क्वायर, हो गए 2 माइनस 4 आई प्लस 3 आई माइनस आई माइनस 6 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 6, डिनोमिनेटर 1 माइनस 4 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4, 2 प्लस 6 8 माइनस आई अपॉन 5, एट माइनस आई अपॉन 5, डिनोमिनेटर सेपरेट किए तो 8 बाय 5 माइनस आई बाय 5 यानी 1 बाय 5 इंटू आई, 8 बाय 5 माइनस 1 बाय 5 इंटू आई, ये होगा आंसर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, ये एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त अपने काम याद है। 1 बाय आई तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय आई, यहाँ कॉन्जुगेट नहीं लिया अपन है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय आई, न्यूमरेटर 1 इंटू आई, डिनोमिनेटर आई इंटू आई स्क्वायर मीन्स माइनस 1 यानी आई अपॉन माइनस 1 माइनस आई, तो 1 बाय आई को डायरेक्ट माइनस आई लिख सकते हैं MCQ सॉल्व करते वक्त। सेकेंड 1 अपॉन ए प्लस बी, 1 अपॉन ए प्लस बी को क्या डायरेक्ट लिखेंगे जैसे ये सॉल्व किए ये मेथड से, तो ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 अपॉन 2 माइनस 3 आई, इट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आई कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर 2 स्क्वायर है 4, 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9 इक्वल टू 13, डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ए माइनस आई बी, 1 अपॉन 4 प्लस 5 आई, डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 माइनस 5 आई अपॉन 4 स्क्वायर है 16 प्लस 5 स्क्वायर 25 इक्वल टू 41। इसके बाद में कुछ फॉर्मूले लर्न कर लेना है जो अभी अपन ने देखे यहाँ तक। आई की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर मीन्स -1, आई क्यूब मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई दैट इज -1 इंटू आई माइनस आई क्यूब रहा तो डायरेक्ट लिखना है माइनस आई रेस टू 4 है आई स्क्वायर होल स्क्वायर या आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1 इंटू -1 या -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, आई रेस टू 4 डायरेक्टली लिखना है 1, आई रेस टू 5 इस मेथड से आगे के निकालेंगे,
आई रेस टू 5 निकालना है तो आई रेस टू 4 इंटू आई रेस टू 4 मीन्स 1, आई रेस टू 4 मीन्स 1 इंटू आई दैट इज इक्वल टू आई रेस टू 6 निकालना है तो आई स्क्वायर में लिखेंगे, आई स्क्वायर रेस टू 3, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रेस टू 3, -1 का पावर 3 मीन्स -1, इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते अपन। और 1 बाय आई दैट इज इक्वल टू -i। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में फर्स्ट एग्जांपल सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन में 2 एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला एग्जांपल अंडर रूट ऑफ -16 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ -25 प्लस अंडर रूट ऑफ -36 माइनस अंडर रूट ऑफ -6 to 5 -16 यानी 16 इंटू -1, 16 इंटू -1 -25 मीन्स 25 इंटू -1, 36 -36 यानी 36 इंटू -1, -6 to 5 मीन्स 6 to 5 इंटू -1। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इसके बाद में लिख सकता मैं अंडर रूट ऑफ 16 यानी 4 अंडर रूट ऑफ -1 दैट इज आई, तो दिस इज 4i। सेकेंड टर्म 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 25 मीन्स 5 इंटू रूट -1 मीन्स आई, 3 इंटू 5i, ये हो गया 3 इंटू 5i। अंडर रूट ऑफ 36 मीन्स 6 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 मीन्स आई, तो 6i। अंडर रूट ऑफ 6 to 5 मीन्स 25, 25 इंटू रूट -1 मीन्स आई, तो ये हो गया -25i। इनके एडिशन ये हो गया 15i प्लस 4i 19i प्लस 6i 25i, 25i minus 25i that is equal to 0. That is a simplification. Second example है 4 under root of -4 plus 5 under root of -9 minus 3 under root of -16. We write in the same way. 4 into under root of -4 means 4 into -1 plus 5 into root of -9 that is 9 into -1 minus 3 into under root of 16 into -1, 4 into ये हो गया under root 4 means 2i, 4 into 2i, 4 into 2i, बाद में प्लस 5 into under root 9 means 3i minus 3 into under root of 16, under root of 16 means 4, root -1 means I, and 4 into 2i plus 5 into 3i minus 3 into 4i, ये होगा 8i plus 15i minus 12i, 23i minus 12i that means 11i. Second, write the conjugate of the following numbers. Complex number है z equal to a plus ib, इमेजिनरी पार्ट है b की साइन है प्लस, इसको साइन चेंज कर देना है, वी गेट z बार कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड इट इज a माइनस ib। यदि माइनस साइन है तो प्लस करेंगे, प्लस रहा तो माइनस, सिर्फ i का कोएफिशिएंट है b की साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना है। ये एग्जाम्पल देते हैं, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल, अब जैसा 3 प्लस i का कॉन्जुगेट आएगा 3 माइनस i, 3 प्लस i का कॉन्जुगेट 3 माइनस i, 3 माइनस i का कोएफिशिएंट है -1, यहाँ पे साइन चेंज करना है, i का कोएफिशिएंट है -1, साइन चेंज किया प्लस, तो कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस i इज 3 प्लस i। बाद में अंडर रूट ऑफ माइनस रूट 5 माइनस रूट 7i का कोएफिशिएंट है -√7, माइनस का प्लस √7 किए तो हो गया कॉन्जुगेट, यानी -√5 प्लस √7 इंटू आई। अंडर रूट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट ऑफ -5 माइनस अंडर रूट ऑफ -5 माइनस अंडर रूट ऑफ -5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 इंटू -1 माइनस √5 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 मीन्स आई का कोएफिशिएंट कितना है -√5, इसका कॉन्जुगेट प्लस √5i यानी √5i, कॉन्जुगेट ऑफ -√5 दैट इज √5 इंटू आई, माइनस साइन का प्लस में कन्वर्ट किया। बाद में 5i इसका कॉन्जुगेट -5i, 5i का कॉन्जुगेट -5i, अंडर रूट 5 माइनस आई तो प्लस करना है, अंडर रूट 5 प्लस आई हो गया कॉन्जुगेट,
अंडर रूट 5 माइनस आई का कॉन्जुगेट √5 प्लस आई, इसका कॉन्जुगेट आएगा √2 माइनस √3 आई, इसका कॉन्जुगेट है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, प्लस √3 आई तो वहां पर माइनस √3 आई, प्लस आई कॉस आई साइन थीटा है तो माइनस आई साइन थीटा. दीज आर द कॉन्जुगेट्स. फाइंड ए एंड बी इफ. इतने एग्जांपल्स है, इसमें ए और बी की वैल्यूज निकालना है, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स. अब फर्स्ट एग्जांपल है a + 2b + ट्वाइस ai = 4 + 6i. अब इसमें मैंने क्या किया, रियल पार्ट है, रियल पार्ट को ब्लू से कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को गोल्डन येलो किया. तो इक्वेटिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स. रियल पार्ट यानी a + 2b = 4, a + 2b = 4. इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट यानी ये गोल्डन कलर यानी i का कोएफिशिएंट ट्वाइस a = 6. अब ये ट्वाइस a = 6 है तो a = आ गया 3, a की वैल्यू 3 यहाँ पे रख दो, b मिल जाता. a = 3. Putting the value of a = 3 in equation 4, in equation 1, a + 2b = 4, a means 3, 3 + 2b = 4, 2b = 1, b = 1/2, and a = 3, b = 1/2. Then next example है a minus b plus a plus b into I = a plus 5i. फिर से ये लिखते वक्त मैंने रियल पार्ट को ये रियल पार्ट को ब्लू कलर और आई का कोएफिशिएंट यानी इमेजिनरी पार्ट गोल्डन येलो. तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. रियल पार्ट इक्वेट किया तो a - b = a. अब यहाँ पे a - b = a पहला इक्वेशन आ गया, a + b = 5 ये हो गया सेकंड इक्वेशन. फ्रॉम इक्वेशन 1 a कैंसिल हो गया यानी -b = 0, दैट मीन्स b = 0. अब b = 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, a + 0 = 5, a + 0 = 5 means a = 5. So we get a = 5 and b = 0. Then next example, a + b into 2 + i = b + 1 + 10 + ट्वाइस a into i. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे a + ib के फॉर्म में, राइट हैंड साइड बराबर है. यहाँ पे a + b into 2 ये हो गया ट्वाइस a + b प्लस a + b into i यानी a + b into i, b + 1 इसको ब्रैकेट में प्लस 10 + ट्वाइस a into i. इक्वेटिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स. रियल पार्ट है ट्वाइस ऑफ a + b = b + 1. अब इसको सॉल्व करने के बाद में इक्वेशन आ जाएगा ट्वाइस a + ट्वाइस b, ट्वाइस b और b इधर लेके आ गए तो ट्वाइस b - b = 1. इक्वेशन 1 आ गया ट्वाइस a + b = 1. इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना है a + b = 10 + ट्वाइस a, 2a इधर ट्रांसफर, a - 2a दैट इज -a + b = 10. अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ट्वाइस a + b = 1 -a + b = 10. सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज, b कैंसल, 3a = -9, a = -3. बाय इक्वेशन 1 - 2, 3a = -9, a = -3. a = -3 कोई भी इक्वेशन में पुट करना है, आइदर 1 और 2. वी गेट द वैल्यू ऑफ b. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, minus of -3 plus b = 10. Minus of -3 means 3. 3 plus b = 10. b = 7 and therefore a = -3, b = 7. The next example है ab into I = 3a - b plus 12i. अब लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट नहीं है, दैट मीन्स 0. 0 plus abi = ये रियल पार्ट है 3a - b plus 12i. इक्वेटिंग रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स. रियल पार्ट इक्वेट किए तो 3a - b = 0. सो इमेजिनरी पार्ट ab = 12.
ये 3a माइनस बी इक्वल टू 12, तो 3a माइनस बी इक्वल टू 0, 3a इक्वल टू बी। इक्वेशन नंबर 1, ए बी इक्वल टू 12, तो इसके ऊपर से b की वैल्यू 12 अपॉन ए, ये b की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है 3a अपॉन ए, 3a इक्वल टू b मीन्स 12 अपॉन ए, 3a स्क्वायर इक्वल टू 12, a स्क्वायर इक्वल टू 4, a स्क्वायर इक्वल टू 4 मीन्स a इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब a की वैल्यू 2 है तो b की 2 वैल्यू आएंगे। व्हेन a इक्वल टू 2, व्हाट इज b? 12 अपॉन a मीन्स 2, 12 अपॉन 2 दैट इज 6। a की वैल्यू माइनस 2 लिया तो b इक्वल टू 12 अपॉन a मीन्स माइनस 2, 12 अपॉन माइनस 2 मीन्स माइनस 6, एंड फॉर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 6 और a इक्वल टू माइनस 2, b इक्वल टू माइनस 6। इसके बाद में नेक्स्ट है 1 अपॉन a प्लस आई बी इक्वल टू 3 माइनस 2i। 1 अपॉन a प्लस आई बी है, इसका रेसिप्रोकल a प्लस आई बी, 3 माइनस 2i का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 3 माइनस 2i। इसको मल्टीप्लाई करके या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, a प्लस आई बी इक्वल टू 3 प्लस 2i, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस i का स्क्वायर है 2 स्क्वायर i स्क्वायर, 3 स्क्वायर है 9, माइनस 4 इंटू माइनस 1, 9 प्लस 4 13। डिनोमिनेटर सेपरेट किए तो 3/13 प्लस 2/13 इंटू आई, दिस इज a प्लस आई बी। इक्वेटिंग रियल पार्ट a इक्वल टू 3/13, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स b इक्वल टू 2/13, सो a इक्वल टू 3/13, b इक्वल टू 2/13। बाकी एग्जांपल्स कर लेंगे।